Thank you so much, everyone. And let's start the session. When we say what are the toughest exam in India, CS are the only answer we get from the community of the student. And when we say examination, it's the perfect combination of the effort and the success mixed together. And I have seen many chartered accountants after having the 30 and 40 years of experience saying that I am still having the nightmare of the writing the exam paper in the exam hall. So we can imagine from that statement that how the student is facing the anxiety and all those mental pressure during preparation of the exam. Whether I should go for the one group or whether I should go for the two group, whether I should skip this attempt or target the next attempt, or I should target the exemption. There are so many confusion in the mind of the student. So among this condition of the confusion and the chaos, Cuttack branch of ICASA jointly with Navi Mumbai of ICASA and Pune, Vapi, Kalyan, Dombivali, Bharuch, and Nanded and Thane branch of the ICASA present to you the motivational session for the CA student Safalta. I would like to welcome the speaker of the today's session, Prerana Molla ma'am. She is a qualified company secretary and cost accountant. She also have completed her MSc in Value Education and Spirituality. She got associated with Brahma Kumari in the year 2013 while pursuing her graduation. She also served as a lecturer in Lockheed Institute of Professional Studies, Jodhpur. And she also worked as a GST trainer in Mangalore. She was associated with Coal India, Bilaspur, and Hotel Hindustan International, Bhubaneswar, and internal audit. Currently, she is working at Sujala Trading and Holding Limited as a company secretary and compliance officer and helping in day-to-day affairs of the Brahma Kumari. I welcome you, ma'am. I would like to welcome CA Shiva Agrawal, chairman of the ICASA Cuttack branch, CA Brinda Vakharia, chairman of ICASA Bharuchi branch, Rosni Bhabnani, vice chairman of Kalyani Dombivali branch, Rinki Kitani, secretary of ICASA Pune, Partha Upadhyaya, vice chairman of ICASA Pune branch, Mansi Daga, vice chairman of ICASA Vapi branch, Ekanath Rajdev, vice chairperson of the ICASA Nanded branch. Last and not the least, Bhumi Kotak, vice chairman of ICASA Navi Mumbai. And to all the participants who have taken an active participation in today's session. Over to you, Renal ma'am. Please continue the session. Good morning. My voice is audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. And good morning and Om Shanti. Good morning, Om Shanti. When we meet in Brahma Kumaris, we greet to each other by reminding to ourselves, by telling to first to ourselves, Om Shanti. The meaning of Om Shanti is, I am a peaceful soul and my nature is peace. This is a reminder we have to give to ourselves every time. So today our topic is Safalta. If you do breakup of Safalta, there is one word hidden in between, Fal. Safalta, Fal. Fal means that is output. So today, now I will request all the students if they can put their videos on. This is about our life's act, how to run our life and how to lead our life. So today we will talk about the output, the Safalta, Fal. Generally the input, suppose I am planting a tree. So I have to plant a seed, then I have to nourish it every day with water, and sunshine is also needed. Similarly, today we are studying a lot, putting a lot of hard work, dedication, effort. That is our input. Similarly, our thought is our seed. If the seed is very pure, if the seed is positive, suppose I am giving programming to my mind, doing exam time, stress is natural, anger is natural. Without anger, I will not be able to give my 100%. Irritation, frustration, this is the input. Then what do you think, what will be the output? We will get the result
We will succeed also in our life, but what about the mental peace? It is also simultaneously important. So be careful about the input you are giving, programming you are giving to your mind. We have to study, we have to give our 100%, we have to study 16 hours, 18 hours, no matter. You have to give your 100%. Simultaneously, I have to take care of this mind, energy. Without taking care of this mind, we cannot give our 100%. Many times it is seen in exam hall, we are prepared very nicely, very thoroughly. In spite of that, in exam hall, we are not able to write that answer. What is the secret behind it? In spite of doing revision twice, thrice, I forgot that answer in the exam hall. The reason is mind is not in our control. In our mind, many things are going. Mind is not in our harmony. If the mind is very silent, very easy, if the mind is stable, we will remember everything. So during exam hall, exam time, I see students, they take break, they sleep only for 4 to 5 hours. Don't do this practice. Our mind need at least 6 hour rest every day to work smoothly function. Even after taking 6 hours, we feel we are sleep deprived. So don't cut this from 6 hours to 4 hours. If you can increase it, and I personally feel during my exam times, I used to take perfect sleep, at least 8 hours, so that I am very much fresh next day. So I will give my, I will write my during the exam time. I am very fresh, energetic, and I'm not feeling laziness or I'm feeling sleep deprived. This is the first steps I will request you. Don't cut your sleep time. Take proper rest. Mind need rest, like body need rest, our mind also need rest to function it. Acha, secondly, never ever doubt yourself. If you are feeling पता नहीं सीए क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैंने पता नहीं बहुत चलते हैं, क्या होगा कैसे होगा, नहीं पास होंगे, मेरा फ्रेंड आगे बढ़ गया, एक अटेम्प्ट आगे होगा, this entire thought process does not make us feel energetic. अच्छा, so whenever you feel कि clear होगा नहीं होगा, just write CA your name in bold letters in any copy, or take out print out of it, and see it again and again. Whenever doubt come, subtle doubt also come in your mind, I will clear it or not clear it, just write CA, like Richa is in front of me, write CA Richa Agarwal. जब भी डाउट आए, see this, visualize it, I am CA. हमको CA बनना नहीं है, एग्जाम देने के बाद हमको रिजल्ट I will get, but now I am CA. Clearing CA exam is very easy. I will clear it certainly. Just make sure, if you are doubting yourself on your own potential, even if the entire world is telling you are very intelligent, you will clear it, you will not be able to clear it. But if you have faith on yourself, I will clear it. Even if the entire world is telling me I will not be clear it, I will clear it. Just have faith on yourself. It is certain, success is certain for me. I am successful, I am powerful. Just repeat this like a mantra. I am successful, I am powerful. My concentration power is highest. Whatever I am learning, it is getting registered in my mind. हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको याद हो गया. My mind is in my control, and during exam time हमने जो पढ़ा वो मेरे को याद आ गया. We give reminder, we give affirmation to our mind. पता नहीं एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा. Universe does not know what is right, what is wrong. Whatever programming you are giving to your mind, that will come into reality. ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरे को याद हो गया एग्जाम हॉल में. Along with section, I am writing it. My mind power is highest. मेरा concentration level बहुत अच्छा है. ठीक है. Similarly, don't doubt yourself. Firstly, write your name somewhere. CA Richa Agarwal. Richa, this is just an example. And बार बार CA बोलेंगे तो आप बन भी जाएंगे. ठीक है. First, write your name. Don't doubt yourself. Never ever doubt yourself. I will do it. It is certain. It is possible. Thirdly, today we have adopted some culture. I will say it actually fashion. Suppose Richa is calling Neha. Just an example. तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ? Then what Richa will tell? Richa आप क्या बोलेंगे?
Suppose Neha is calling you and asking about your status of studies. What reply you will give? I'm preparing for my exams. Acha. It's great you will tell like this, but now we have adopted the culture. Suppose Richa is calling Neha. नेहा तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा, अभी तो हम बुक भी नहीं खोले हैं. एंड व्हाट इज द रियलिटी? उसने हाफ से ज्यादा कंप्लीट कर लिया. ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट, ये जो हमने कल्चर अडॉप्ट किया, इफ यू कैन नॉट हेल्प एनीवन, प्लीज डोंट बिट्रे. अगर आप सच नहीं बोलना चाहते, डोंट टेल लाई ऑल्सो. During exam times, we tell that luck factor is also important. What is luck? Blessings which we are earning from outside, that is luck. Suppose you are telling lie to Neha, Richa is telling or other person telling lie. ठीक है, तो उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो. वो बैक ऑफ द माइंड में क्या सोचेंगे? ये झूठ बोल रही है, ये पास नहीं हो ना. तो डोंट अर्न अपोजिट ऑफ ब्लेसिंग्स. अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, टेक दिस मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे वजह से किसी को लॉस भी नहीं हो. टुडे वी कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस प्लेटफॉर्म. दिस आर द स्मॉल टिप्स. डोंट फॉलो दिस कल्चर. हमको नहीं हेल्प करना है, हमको सच नहीं बताना है, इट्स ओके, बट आई विल ऑल्सो नॉट टेल लाई. सेकेंडली, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, नेवर एवर कॉल एनी फ्रेंड जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करे, आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करे और मेक यू फील डाउन और विल टेल तुम नहीं कर सकती. उन सारे पर्सन से हमको इंटरेक्ट नहीं करना है. हम लोग मिलेंगे रिजल्ट के बाद. आफ्टर माई रिजल्ट आई विल टॉक टू यू. ठीक है, दिस पर्सनली आई यूज्ड टू फॉलो. आई यूज्ड टू कॉल ओनली माई वन फ्रेंड जिसके ऊपर मेरे को 100% फेथ था. शी विल नॉट टेल मी लाई एटलीस्ट, and she will help me if in any topic I am having confusion. So call that friend only in which you have 100% faith. वो कोई भी ऐसे पर्सन को कॉल नहीं करे जो आपको डिमोटिवेट करे या आपको डिस्चार्ज करे या आपको डिस्ट्रैक्ट करे. Simultaneously, I will tell this, and in your house also, during exam times, I feel we have our exam or our parents is also having our exam. Richa, we have exam or our siblings as well as our parents is also having exams. Yes ma'am, definitely. We are only having our exam. So हमारे घर का माहौल है ना बहुत hot रहता है. Actually I will say hot word I am using. Actually we are not talking politely with our parents or siblings. They even fear that इनके पास आना भी बहुत खतरा है एग्जाम के वक्त, बिकॉज इनका सारा गुस्सा ये किसके ऊपर निकालेंगे? हमारे ऊपर निकालेंगे. सो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, टॉक पोलाइटली विथ एवरीवन, बिकॉज इफ यू आर सेलिंग टू योर सिबलिंग्स और पेरेंट्स समथिंग रॉन्ग और क्रिएटिंग एंगर ऑन देम, मेक श्योर वो आपको क्या देंगे, ब्लेसिंग देंगे कि ब्लेसिंग का ऑपोजिट देंगे. वो मुंह सामने नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट टेल यू इन फ्रंट ऑफ यू, बट in their mind ये फेल हो जाए, क्या पढ़ते हम भी, they will think, they will create this thought, हमने भी तो एग्जाम दिया था, हम तो इतना डिस्टर्ब नहीं होते थे. बट what they are doing like this. Exam will come at every point of time. In life also exams comes and go, but during exam time I have to be happy. Enjoy your studies. I feel exam time is the best time. ठीक है, enjoy your studies. Don't create anger on anyone. And if possible, when you are taking break, offer water to your siblings or to your parents. वो बहुत खुश होंगे, वो आपको दुआएं देंगे. ठीक है. So during exam time, आपके घर का environment not should be very high, negatively high. It should be positive. Okay, आप मेरे पास आ सकते हो. If you want to talk to me for 2 minutes, उनको भी पता होता है हमारा एग्जाम होता है, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. They only want 2 minutes. क्या 2 मिनट्स बहुत एक्सपेंसिव है? आप 2 मिनट्स के बदले क्या करते हो? यू टेल देम समथिंग अब्यूजिव और यू टॉक रूडली टू देम एंड दे गेट डिस्टर्ब 2 आवर्स. और वो 2 आवर्स वो किसको याद करते हैं? आपको याद करते हैं. क्या उस वक्त आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? जब आपको हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आई एम सेंडिंग टू यू, इट इज पॉसिबल यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट? नो, आपका कॉन्सेंट्रेशन उस समय नहीं लगेगा.
So make sure just unblessing. हेल्प नहीं कर सकते, प्यार से बात नहीं कर सकते, तो नफरत से बात भी मत कीजिए अपने लिए. वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ. एंड डूइंग एग्जाम टाइम यू आर टेकिंग ब्रेक इन बिटवीन. रिचा, आप ब्रेक लेते हैं? एनी वन ऑफ यू टेक ब्रेक इन बिटवीन? सपोज यू आर स्टडिंग फॉर अ स्ट्रेच फॉर 2 hours. During your break time, what you do generally? मैम मैं अपने रूम से बाहर जाकर मतलब फैमिली को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, 2 मिनट उनसे बात कर लेती हूँ. अच्छा, एंड अनदर स्टूडेंट्स, लिचन आप क्या करते हैं? लिचन बेहरा. Ma'am, I'm going to my prayer room and pray to God. Great. If you are doing this, it is very great. But and if any of you are taking break for 2 minutes and seeing some OTT platform, don't do this during this time. Suppose impact of OTT platform is highest. आप जो पढ़ रहे हो वो विजुअल नहीं है ना, वो ऑडियो है. ठीक है. Suppose I am studying for 2 hours. After that, I am taking break for 2 minutes. And in that 2 minutes, I am seeing some video. ठीक है. क्या याद रहेगा? वीडियो याद रहेगा कि ऑडियो जो आप पढ़ रहे थे वो याद रहेगा? वीडियो याद रहेगा. वो मत कीजिए. हमको लगता है 2 मिनट देख लिए, कुछ नहीं होगा. कुछ होगा कि नहीं होगा? Suppose I am going to a party. I am eating everything healthy and taking some junk food. उस जंक फूड का हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा. ऑफ कोर्स होगा. हमको लगता है कुछ नहीं होगा, 2 मिनट ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लिए तो क्या होगा? वो 2 मिनट जो आपने 2 घंटा पढ़ा है सेट ऑफ हो गया. वो 2 घंटा आपका पढ़ा हुआ वॉश अवे हो जाएगा. यू विल रिमेम्बर ओनली 2 मिनट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म. This is very risky at this point of time. If you want to see OTT platform or you want to take break for 2 minutes or 5 minutes, you want to recharge yourself, see positive video. वो visual success का वीडियो देखिए जो आपको एनर्जाइज करेगा. पॉजिटिव वीडियो, सक्सेस का वीडियो, हार्ड वर्क वीडियो और सम वीडियो which increase your energy, which increase your concentration power. ठीक है. These are the small tips you have to follow during exam time. अच्छा, one more culture I will say, during exam time we feel कोई भी 6 घंटे सोने से काम हो जाता है. Is this okay? Any 6 hours? No. नेचर ने भी कुछ स्लिप के लिए टाइम बनाया है. ऑफिस में कभी ऐसा होता है कोई भी 6 घंटे जाके काम कर लो, तब ऑफिस कैसा चलेगा? No rules, no regulation, no timetable. Similarly about our life also, make timetable and sleep properly. 10 p.m. to 2 a.m. sleep is the best time. We feel during night time we will study, शांति रहता है, याद हो जाएगा. नहीं, रात का पढ़ाई इतना इफेक्टिव नहीं होता है. Personally, when I was preparing for CS final or CMA final, I used to wake up every day at 4 a.m. 4 a.m. in दुनिया में भी बोलते हैं, it is called ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला. That time is the highest time, positive time. Whatever you will study, वो आपको याद हो जाएगा. याद करने का मेहनत नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. If you feel any subject which you feel it is tough, like in our mind programming is there. ITSM तो बहुत tough है, 40 लाना भी difficult है. पता नहीं कैसे होगा. दिस आर द एंटायर प्रोग्रामिंग वी हैव डन, सदियों से चली आ रही है. ठीक है. तो whatever subject you feel it is tough or you feel I will be not be able to learn, memorize it, just experiment it. Wake up at 4 a.m. आप जो याद करोगे याद हो जाएगा. So sleep properly. हमको सुबह उठने का मेहनत नहीं करना है. हम लोग का क्या करते हैं, what we do generally, we sleep at 1 a.m. and we think we will get up at 4 a.m. It's not possible. My body needs proper relaxation. Sleep early, you will automatically wake up early. ठीक है. तो wake up early, try to wake up at 4 a.m. Study for 1 to 2 hours, then take break or whatever your routine. अच्छा. Never ever study one subject at a stretch. You will feel boring. Take combination of 2 to 3 subjects at a time.
whenever you feel you are sleepy, still you want to study, start doing practicals. अच्छा, I will also share. आप स्टडी को एंजॉय करते हो कि दिस इज द एनर्जी ऑफ ये कंपनीज एक्ट कब माथे, ये कब बला कब जाएगी, ये इनकम टैक्स, ये ITSM तो पल्ले ही नहीं पड़ता. क्या हम ऐसा स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई? बी ऑनेस्ट. होता है मैम. होता है ना. अच्छा, ये जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, वी हैव रिलेशन विद देम फॉर वन डे और इट इज लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप? Lifelong. लाइफ लॉन्ग. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनकम टैक्स है, कंपनीज एक्ट है, स्टिल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव टू यूज इन आवर डे टू डे अफेयर. इट अच्छा, जिसके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशन होता है, उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि वीक करना है? स्ट्रॉन्ग करना है मैम. Suppose I am meeting to Richa every day. I am telling her, oh Richa, you are so boring. I don't want to see your face also. This is just an example, huh Richa? Acha, suppose I am opening my book and I am giving this affirmation to the mind. क्या वो subject याद होगा? याद होगा? नहीं. So before studying, don't attack on your books first of all. Sit in silence for 2 minutes. Sit in silence for at least 2 minutes. Give affirmation to your mind. I am enjoying my studies. This is my best time. Whatever I am learning, ये मेरे को याद हो गया. Everything is getting registered in my mind. I am very happy. I am enjoying my studies. I am successful. Mind में अगर कुछ भी problem चल रहा है before studying, address that issue first of all. अगर मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, suppose, and that topic is going inside my mind and I have started studying. हम बुक तो खोल लेते हैं, बट वो बात हमको बार बार खींचता है. ऐसा होता है ना. तो हमको क्या करना है? whatever issue is going in my mind, first of all address that issue, then start studying. At least sit in silence for 2 minutes. ये subject, and if you feel any subject is hard, don't call any subject hard or boring. Don't label this. This subject is very, very, very easy. I will secure 60 marks. Marks भी अगर अपना decide करना चाहो कर लो. हम क्या प्रोग्रामिंग देते हैं? बस ITSM में 40 तो आ जाए. वो 40, ये प्रोग्रामिंग ही गलत है. You have to change your programming. No, 40 सोचेंगे तो 40 आएगा? नहीं. 80 सोचेंगे तो 60 आते हैं ना. I will get exemption in this subject. In accounts, I will get 80. I am very confident. कोई भी tough से tough paper भी आ जाए, I will give my best. My mind is in my control. I will share my experience. I was giving my CS final exam. Tax, I used to feel it was little bit tough for me. I have done thrice revision. Then, moment I saw the question paper, only I knew 10 marks and I got scared. सिर्फ 10 marks का आता है, क्या घर वालों को मुंह दिखाएंगे, फिर एक attempt हो जाएगा. Then we used to get 15 minutes. 15 minutes हमको मिलता है ना reading time. Then I just sit in silence for 2 minutes. और डिस्टर्ब हो गए थे अचानक. हम 2 minutes एग्जाम हॉल में साइलेंस में बैठे. I give affirmation. God, तुम आ जाओ. Your power is with me. I will give my 100%. Even if the paper is tough, no issue. कुछ तो उस टॉपिक का आता ही है. I will give my 100%. Then I just sit in silence. Then I started writing. 3 hours I was writing continuously. Pen was not down for 1 minute also. I got 16 that paper. I knew the secret. My mind was in my control. I was very stable. कुछ भी tough से tough paper आ जाए, no issue. I know I have to attend 100%. I will give my best. And one more, during exam time, suppose आपका first paper खराब हो जाता है. Suppose, I will tell you. Don't break. Don't feel depressed. Don't start counting marks. पता नहीं 40 भी नहीं आएगा, आगे का 2 पेपर क्या दे, ये ग्रुप तो गया, फिर दूसरा अटेम्प्ट, अच्छा उसका एग्जाम कैसा गया, हम एक अटेम्प्ट पीछे हो जाएंगे. नो. सपोज आपको लगता है आपका 40 नहीं आएगा, कोइंसिडेंटली यू विल गेट 40. स्टार्ट हार्ड, पुट योर बेस्ट इन द नेक्स्ट पेपर.
put so much hard work, you will get 60 or 70 in that paper. सेट ऑफ होके हो सकता है आप क्लियर कर ही लो, हो सकता है ना. तो एक पेपर के बाद अगर एक पेपर खराब हो भी जाता है, डोंट डिप्रेस. अच्छा, अबाउट कंसंट्रेशन आई विल टेल, लाइक वी ईट फूड, फूड को डाइजेस्ट करना पड़ता है एज पर साइंस. 2 hour डाइजेशन पीरियड इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट आवर फूड. सिमिलरली अबाउट स्टडीज, उसको भी तो डाइजेशन का टाइम देना पड़ेगा ना. तो जब आप पढ़ाई को क्लोज करते हो, मेक श्योर रिवाइज, क्लोज द बुक, रिवाइज दैट कंटेंट फॉर ट्वाइस थ्राइस, तब आपको याद होगा. बुक खोल के रिवीजन नहीं होता है, बुक बंद करके रिवीजन करो. एंड डूइंग योर मील टाइम, doing meal time, don't study and meal, no parallel, don't do it. Doing your meal time, eat, be happy, chew it very properly. हड़बड़ी में मत खाइए. Just eating is not a business, eating is not a process. Eating, when you eat properly, our body also functions smoothly, our cells also function smoothly. So during eating time, you can revise that content. उस सब्जेक्ट को अंदर ही अंदर रिवाइज कीजिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो रहा है एंड यू आर ईटिंग ऑल्सो. एंड डूइंग योर मील टाइम, डोंट यूज टेक्नोलॉजी और OTT प्लेटफॉर्म. सब पानी में चला जाएगा पढ़ा हुआ. During this time, don't use technology. I will request you personally, because if you are watching any OTT platform, what are the content? Revenge, competition, कंपैरिजन, नो. वो इनपुट माइंड को जाएगा, आउटपुट क्या होगा? डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन. नो. इनपुट जो जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इन कोविड, द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच यू यूज्ड टू गिव टू आवर बॉडी वाज वेरी हाई. तब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था. सिमिलरली अबाउट द MIS ऑफ माइंड इम्यूनिटी सिस्टम शुड बी हाई. ओनली आई एम ईटिंग पॉजिटिव, listening positive, drinking positive. And about water, I will tell, during the entire day we drink 8 to 9 times water. अपने पानी में जो मंत्र डालना है डाल दो. Our body is made up of 75% of water. दुनिया में भी क्या बोलते हैं? मंत्र है, अमृत है. So in your water, आपको जो डालना है, सक्सेस का मंत्र डाल दो. अच्छा, वो मंत्र क्या डालेंगे? I am successful, हम CA बन गए, आई एम गिविंग IPCC और इंटरमीडिएट फाउंडेशन और फाइनल, आई हैव क्लियर दिस सब्जेक्ट. मेरे लिए जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है. ऐसे मंत्रा आपको अपने वाटर में डालना है. जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी चाहते हो, पुट दैट इन योर वाटर. इट इज लाइक मैजिक. इन गूगल ऑल्सो यू कैन सर्च इमोटो थ्योरी, उसमें उन्होंने वाटर के बारे में बताया. ठीक है. सो फर्स्टली, नो टेक्नोलॉजी, स्लीप डिप्राइव, टाइम मैनेजमेंट. एंड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले किसका दर्शन करते हैं? बुक्स का कि मोबाइल का? व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? लिचन किसका करते हैं? मैम मोबाइल का ही करते हैं, क्योंकि वहाँ मोबाइल का पे करते हैं ना. आजकल हमारा बहुत अच्छा कंपेनियन हमारा मोबाइल बन गया. नो. When we wake up early in the morning, in the first hour, don't connect yourself with technology. See some positive video or read some positive article. This is the breakfast for the mind. Like it is important to give healthy breakfast to the body, it is important to give healthy breakfast to the mind. See some positive video. I used to remember जब हमारे ग्रैंडफादर के टाइम थे, वो क्या करते थे? सुबह घर में गायत्री मंत्र चलता था. एंड when I was childhood, मेरे घर में तो नियम था कि आपको हनुमान चालीसा करके अपना लाइफस्टाइल आगे बढ़ाना है. ठीक है. सो वॉट एवर प्रिंसिपल यू फॉलो इन योर हाउस, एनी कस्टम, रीड समथिंग पॉजिटिव इन द मॉर्निंग. क्या होता है आज मॉर्निंग में? एक हाथ में कॉफी, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर, सामने इंस्टा तो चल ही रहा है. नो, ऐसा मॉर्निंग नहीं हमको स्टार्ट करना है. ठीक है. हमारा मॉर्निंग वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं. आई एम स्माइलिंग, आई एम एंजॉइंग इन द मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी.
हम पढ़ सकते हैं, अपने आप को शाबाशी दो, दूसरे से शाबाशी मांगनी नहीं है। क्या हम कितनी बार मांगेंगे? हम खुद को शाबाशी दे सकते हैं। Yes. ठीक है, these are the small tips we have to follow during our exam times. That's it for the day. If anyone want to ask anything, you can. Yeah. Ma'am, how So in self-discipline while studying? एक्चुअली मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियोस ऑन कर लें। अपना एक दूसरे का फेस देखने से अच्छा लगता है, ऐसे काला काला रहने से अच्छा नहीं लगता है। हियर नो कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है, तो आप अपने 40 पार्टिसिपेंट्स हैं तो सब अपने वीडियोस ऑन करें। We all are CA members family. We are family. सब हम एक ही फैमिली के हैं, अलग नहीं है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. ये सब मतलब घर पे ऑब्वियसली जब हम अकेले प्रिपेयर कर रहे होते हैं पॉजिटिविटी रह जाता है और हम बहुत ही अच्छे माइंडसेट में रहते हैं, अपने आप को सब नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, पर एग्जाम हॉल में आते ही वो फियर फैक्टर आ जाता है एंड वी गेट एंशियस ऑल ऑफ अ सडन। तो उसका Okay, during exam time, first of all, when you are going to exam hall, में आते ही वो माहौल आ जाता है एकदम समझ से। में आ रहा है। I understand your question because maximum students are creating fear. एग्जैक्टली Exactly. अच्छा, what I will do during exam time, suppose you are reaching to exam hall 15 minutes before. Don't talk to anyone. कुछ हाँ। discussion मत कीजिए. Go straight away to your room. Sit with yourself. Talk to yourself. Don't look here and there. Just focus on yourself. वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, irrespective, it is not in my control. I have to focus on myself. Just give positive affirmation. आपका पावर उनको चेंज करे, उनका एनर्जी आपको चेंज नहीं करे. You should be so much positive, energetic, enthusiastic. उनको आप बोलो अच्छा ही होगा. और क्योंकि होता क्या है, हम एग्जाम हॉल में जाने से पहले किसी से बात करते हैं, वो बोलते हैं मेरा इतना नहीं हुआ, आप बोलते हो आपका उतना नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को डराते हैं. मत डोंट क्रिएट पैंगर. किसी से बात मत करो. अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसका आपका सेम एग्जाम हॉल में पढ़ा है, टॉक बट ओनली 2 मिनट्स. जितना हमारा माइंड साइलेंट रहेगा, रिलैक्स रहेगा, उतना माइंड इफेक्टिवली काम करेगा. जितना इसमें क्लटर्ड है, सपोज माई रूम इज वेरी मच क्लटर्ड, स्कैटर्ड, ऑल थिंग्स आर हियर एंड देयर. आई विल सपोज आई वांट टू सर्च एनीथिंग, सर्च कर पाएंगे? टाइम लगेगा ना. Similarly, our mind should be very much organized. No here and there information. कुछ तड़का नहीं चाहिए. अच्छा, तेरा एग्जाम कैसा गया? डर कब लगता है? If I feel my exam was bad, suppose रीचा का एग्जाम अच्छा गया, तब टेंशन होता है. रीचा आगे बढ़ जाएगी तो क्या होगा? No, आप आगे जाओ. It is possible I can give blessing to रीचा. It's okay, आपका एग्जाम अच्छा गया. Go ahead, enjoy other people's success. It's very important. ठीक है, आप आगे बढ़ो, आप खूब आगे बढ़ो. I will give my 100%. I also have faith. हम भी आगे बढ़ेंगे. I will also get result. I will get, definitely I will get the result of hard work. It is certain. Next question. थैंक यू। Ma'am, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ रीचा. मैम, मेरा माइंड जो है बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है. लाइक मैं अगर किसी से भी बात करती हूँ तो वो जो भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बात मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. तो जैसा कि आपने कहा कि किसी से बात मत करो, पर एग्जाम तक तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे. तो I क्या was करना saying चाहिए? that वो पर्सन जो आपको डिस्टर्ब करे, उनसे बात मत कीजिए. जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका माइंड, एक्चुअली योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल. अपने माइंड को प्रोग्रामिंग चेंज करने का जरूरत है. जस्ट वी नीड टू चेंज आवर प्रोग्रामिंग. वो जो कुछ भी बोले, दे आर ही और शी इज शेयरिंग हर परसेप्शन और ओपिनियन. और एग्जाम हॉल में तो बात करना ही पड़ता है. एमसीक्यू तो हॉल कलेक्शन से ही होता है ना, करना ही पड़ता है एमसीक्यू के लिए. तो ठीक है, तो अगर हम बात भी कर रहे हैं, मेक श्योर डू पॉजिटिव टॉक ओनली. ये तो पॉसिबल है. और किसी से फोन में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है, कुछ डाउट होता है, तो इधर उधर की बात न करते हुए straight away talk about the problem. Even if other person want to talk positive, okay, conclude it.
वो चैट को लंबा ना करें। Yes. ओके मैम, थैंक यू। बस आपको बात करना है, बात तो करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम टाइम में रिफ्रेशमेंट के लिए आप बात करो, लेकिन जहां पर सामने वाला नेगेटिव बात चालू कर दे तो यू कैन स्किप इट। पोलाइटली आप बोल सकते हो कि हाँ, आप स्किप कर सकते हो या टॉपिक से डाइवर्ट कर सकते हो। यस एग्जैक्टली, डाइवर्ट द टॉपिक। उनको ये मत दिखाओ हम इग्नोर कर रहे हैं, डाइवर्ट इट। Yes. नेक्स्ट, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम यस लिचन। मैम जब हम सीए इंटरमीडिएट में हूँ, प्रिपरेशन जब कर रहा हूँ, जो पेन ड्राइव क्लासेस हम लोग लिए हैं, तो मैडम उसमें क्या होता है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्लासेस होता है, दिन में 12 घंटे ये सब होता है। तो मैम मतलब पेशेंस लेवल थोड़ा मतलब डाउन हो जाता है इतना करने के बाद, सेल्फ स्टडी समझ, करने के बाद। हाँ, बिकॉज इन ऑनलाइन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट फॉर सो मच लॉन्ग आवर। ब्रेक इट। सपोज 12 आवर्स के क्लास है, 4 आवर्स के हैं, ब्रेक इट इनटू 2 to 3 सेशन। And doing online time, when you are doing coaching, taking coaching classes through online platform, make sure जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, हम अपना फोन हमारे बैग में रहता था ना, सिमिलरली डूइंग ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो होता क्या है, क्लासेस चल रहा है, फोन भी यूज कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा अपडेट तो देख ले, अच्छा व्हाट्सएप में एक मैसेज तो चेक कर ले, अच्छा फेसबुक तो देख ले, नहीं, डूइंग ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो बी सीरियस। आप देखो, हम विजुअलाइज करो, आई एम सिटिंग इन 100 पीपल, एवरीवन इज वाचिंग मी, अपना फोन अंदर रखो, उस वक्त फोन नहीं। आप यही प्रोग्रामिंग दो माइंड को कि हम कोचिंग सेंटर में बैठ के पढ़ रहे हैं। Right. वो रेगुलरनेस थोड़ा नहीं होता, मतलब थोड़ा रुक जाता है। देखो, जब ऑनलाइन क्लासेस होता है ना, थोड़ा एंजॉय करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि मेरा माइंड स्मूथली चले। तो 2 घंटे पढ़ लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक में कोई लिसन टू सम पॉजिटिव सॉन्ग, और टॉक टू योर पेरेंट्स, टू योर सिबलिंग, और थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद वापस बैठे ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ, मैम जब एग्जाम नियर आता है तब मेरा कंसंट्रेशन लेवल ना कम होते जाता है, मतलब जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो और मन नहीं करता। मन नहीं करता। अच्छा, जब एग्जाम अगर पास आ रहे हैं, कंसंट्रेशन में थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो हाँ, पहले हाँ। आपको क्या करना है, थोड़ा आप टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हो? नो मैम, उतना भी OTT नहीं। और नो हाउ नो मेनी मैम, नो मैम, ड्यूरेशन? बस क्लासेस के लिए यूज करती हूँ, और बस that is सॉन्ग सुनने different, के लिए। that is entirely different. We are using technology for classes, that is different. What about OTT platform, Netflix, Hotstar? नो मैम, नो मैम, No. नॉट तो एट जब ऑल। आप जा रहे हैं तो माइंड को प्रोग्रामिंग चेंज करना है। आई एम एंजॉइंग माई स्टडीज, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, माई कंसेंट्रेशन पावर इज वेरी गुड, इट इज हाइएस्ट, मेरा Okay, क्लियर हो चुका है। और एक्चुअल अगर रीजन आप बताएंगे ये थॉट का, तो हम आपको एक्चुअली एग्जामिन कर पाएंगे। मैम शायद स्ट्रेस के लिए, या जैसे एग्जाम नियर आता है तो वही स्ट्रेस के लिए कि आप अच्छे से सोते हो? मैम 4 to 5 आवर्स। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, टेक प्रॉपर स्लीप, 6 आवर्स मिनिमम। देखो, ओके मैम, जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है ना, बॉडी Yes, को भी ma'am. तो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बॉडी से इतना कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मैम, चाहिए ना? चाहिए। तो इसको प्रॉपर 6 आवर रेस्ट लो। उस 6 आवर्स में होते क्या है, कभी कभी अगर मिड ऑफ द नाइट में हमारी आंख खुल जाती है, थोड़ा व्हाट्सएप तो चेक कर ले। इन हाफ आईज ऑल्सो वी चेक द ऑनलाइन थिंग्स, दिस इज वेरी रिस्की। अच्छा, आई विल ऑल्सो टेल वन लाइफस्टाइल हैबिट, बिफोर स्लीपिंग डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फॉर टेक्नोलॉजी एट लीस्ट 1 आवर। सोने से पहले प्रिपरेशन कीजिए, कुछ पॉजिटिव वीडियो या ऑडियो देख के ही सोना है हमको, और Yes, अर्ली ma'am. मॉर्निंग में पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट डे क्लोजिंग स्टॉक विल बी नेक्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ऐसा होगा ना? तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग है उसको थोड़ा ध्यान से, यस मैम। और अच्छे से सोइए, सेल फोन को दूसरे रूम में रख के सोइए, वो भी आराम से सो जाएगा, वो आपके बिना सो जाएगा। नेक्स्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, I will conclude it for the day. Next faculty is waiting for us. She is also from Brahma Kumaris, BK Shuleka. She will guide us. She will share for certain tips,
सक्सेस का मंत्र सूत्र, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. टाइम इज सर, Lingraj sir, yes ma'am. we can extend it for 15 minutes, sir. It is possible. Sure Yes, ma'am. ma'am. I think we Thank you can so much. extend till 12. Technique, Till 12. Okay, one more students faculty actually member is there. will, She will share us about success ka mantra, certain positive doings, tips which we have to follow during our exam times, and she will also conclude it by doing meditation. Okay, all the very best for the exam, thank you so all much the ma'am. students. Thank you, ma'am. Just Thank you, think ma'am. positive. Thank you, Success is ma'am. certain for us. सीए तो बनना ही है, आज नहीं तो कल. हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही तो Yeah. सीए के रोल Yes, मॉडल है. ma'am. हम ही है ना कल के सीए के रोल मॉडल. Yes. हम ही को तो Yes, कल, ma'am. आज हम यहाँ पर है, कल आप यहाँ पर होंगे ना हमारे जगह. Yes. Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay. Thank you so Thank much. you. Thank Om you, ma'am. Shanti. Thank you, Now ma'am. It another was a great faculty will session join with you you. within a minute. Yes, Richa, you were telling something. Ma'am, it was a great session with you. Thank you so It much. was indeed needed, ma'am. before Much exam. needed. Actually, break power back. Okay. Thank you. Yeah. So you. all the participants, please stay here. Another faculty will join, and it will be a 15-minute session. So please stay here. And I request all the participants to stay to switch on their camera. Thank you so We are much. 40 participants here, and all of us are students. Students fraternity member. आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे? Thank you so much, Prerna ma'am and Shiva sir. It's a wonderful session with you, ma'am. Now I request Shri Brinda Bakharia ma'am, the chairman of Bharuchi branch of Bukasa, to say a few words to the students about the preparation of the exam. And ma'am, over to you. Before ma'am starts, ma'am, we have our speaker with us. So let her complete her session, then we will go ahead. Okay, sir. Hello. Om Shanti. Om Shanti, ma'am. Om Shanti. Yeah, ma'am, you can start over. अच्छा, हमारी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी जी जी। जी मैम। ओके ओके ओके। आप सब हैप्पी? Yes. सब खुश हैं? जी सब खुश हैं। मन खुश है? जी। Yes, ma'am. जी मैम। कहते हैं मुस्कान मुस्कान सफलता दिलाता है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, मोमेंट हो, अगर चेहरे पर मुस्कान है तो आज ही परिस्थिति सॉल्व हो जाता है। राइट? Yes. Yes, ma'am. तो परिस्थितियां हमारे लिए तो जैसे कि एक खेल होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति भी जीवन का एक हिस्सा है। जैसे दिन और रात जरूरी है और होना ही है, लेकिन देखा जाए तो दुख और सुख हमारे साथ ही लगा हुआ है। उसी प्रकार हार और जीत ये भी हमारे ही संग संग है। अच्छा बुरा हमारे साथ ही होता है, क्योंकि हम ऑल टाइम राइट हो ऐसा भी तो नहीं होता है। तो कर्मा को अगर देखा जाए तो कहते हैं जैसा कर्म होता है उसका फल भी वैसा ही होता है। तो हम कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, या फिर कुछ बनने का कुछ भी, तो हमें हर परिस्थिति का सामना करना ही होगा, क्योंकि परिस्थिति हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे सफलता हमारे जीवन का
सर्वश्रेष्ठ शिखर है ऊंचाइयों तक पहुंचने का, उसी प्रकार परिस्थिति रूपी लोढ़े रास्ते में ना हो, हम पार नहीं जा सकते। अगर अपना जीवन को नया रास्ता देना है तो उस रास्ते को खुद ही बनाना होगा, और उस रास्ते पर जो भी कांटे हैं, झाड़ हैं, पत्थर हैं, खाई हैं, वो सब कुछ आपको ही भरना है, सफाई करना है, क्योंकि हमें सफल होना है। तो सफल होने के लिए हमें हिम्मत की आवश्यकता है, साहस की भी आवश्यकता है, हौसला भी चाहिए। राइट या रॉन्ग? राइट मैम। ठीक, तो आज तक आप यहाँ तक जो पहुंचे हो, क्या आपके जीवन में कोई भी बात नहीं आई है? आई है ना? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परिस्थितियां भी हमें सामना करना पड़ता है। लाइफ लगता है छोटा है लेकिन परिस्थिति बड़ी। जब हम छोटा थे तो परिस्थिति छोटा था, लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफ आगे निकलते जा रहा है, परिस्थिति और भी क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है ना। और ये हमारे साथ ही रहेगा जीवन भर। तो कोई भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता का चाबी कहते हैं कि दृढ़ता का चाबी है ना। सफलता क्या है? दृढ़ता का चाबी। अगर हमारे अंदर दृढ़ता ना हो, एकाग्रता ना हो, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे आप पढ़ाई को ही ले लीजिए, चाहे ऑफिस को ले लीजिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, आप ठान लिए हैं कि मुझे ये करना है तो भी एक दृढ़ता है, मुझे ये बनना है वो भी एक दृढ़ता है, मुझे पढ़ना है ये भी एक दृढ़ता है। तो जब तक हमारे मन में दृढ़ता, जिसको कहते हैं जुनून, जुनून के बिना कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो क्षमता और पावर अपने आप में लाना पड़ता है। लाइफ में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ रॉन्ग भी होते हैं देखा जाए तो लोग हमारे आसपास। लेकिन आपको लगता है कि हम गलत में भी सही ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढ सकते हो। जैसे कहते हैं ना, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बन जाओ तो समस्या समस्या नहीं रहता है। चाहे कोई भी क्यों ना हो। नजरें बहुत कुछ देखता है, हमारे जो ये आंखें हैं ये बहुत कुछ देखता है, लेकिन हमारे पास और एक नजरें हैं। हम चाहें तो उस नजरे से बाहर का जो नजारा है उसे हम बदल सकते हैं, और उसके लिए हमें खुद का एक सोच बनाना होगा। और वो सोच क्या होगा आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो नजरें हैं, आंखें जो देखते हैं दुनिया को, व्यक्ति को, वातावरण को, ज्यादातर क्या दिखाई देता है उसको? नेगेटिव। और हम जो देखते हैं वो दिमाग में तुरंत जाकर बैठ जाता है, और वो भी हम करने भी लगते हैं कभी कभी। लेकिन हम बाहर के नजारों को ना देखकर अगर अपनी नजरें बदल लें
तो क्या होगा, बाहर का परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगा। राइट या रॉन्ग? राइट मैम। सबको ठीक लग रहा है? Yes, ma'am. तो सफलता का चाबी क्या है? दृढ़ता। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो उसको कहेंगे प्रैक्टिस। दृढ़ता के लिए भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस। कुछ भी अगर आपको बनना है, कुछ करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस ही हमें एक दिन क्या करता है? प्रैक्टिकल स्वरूप दिला देता है, और वही हमारे लिए क्या है? सफलता है। तो कुछ भी अगर करना है तो सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। कभी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो जब हम मन में नेगेटिव आता है तो वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाता है। बाहर में सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, और हम बहुत कुछ सुनते भी, सोचते भी बहुत हैं। तो कहते हैं अंदर में अगर जो प्रैक्टिस चल रही होगी नेगेटिव का, तो प्रैक्टिकल में भी कभी कभी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होने का संभावना है या नहीं? हो सकता है कि नहीं? 100% नहीं होगा, लेकिन 10% होगा, 5% होगा, पर होगा, जरूर होगा। रिएक्शन का एक्शन जरूर होता है, कहते हैं ना, कोई चीज का अगर किसको रिएक्शन हो गया तो वो एक्शन में आएगा ही आएगा। तो मन में अगर कोई भी बात अगर चल रही है और वो हमारे कर्म द्वारा ना हो, ऐसा नहीं होगा, चाहे बोल द्वारा हो, एक्टिविटी द्वारा हो, जो भी हो, पर होता है। तो अगर सफलता को प्राप्त करना है तो एक तो दृढ़ता चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस चाहिए, और चौथा नंबर में क्या है? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल ही हमारा क्या है? सफल। तो आप तो सोच रहे हैं कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे, ये आपने एम ऑब्जेक्ट को माइंड में फिक्स कर लिया, ठीक है। लेकिन जब आप कर्मा में उतरते हैं, प्रैक्टिकल कुछ करते हैं, तो उसमें कुछ और ही दिखाई पड़ता है। तो क्या हो गया? सोचना, बोलना और करना, तीनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो जो मन में सोचा है वही हमारे मुख पर भी हो, और वही हमारे कर्म में भी होना चाहिए। तो सफलता हमारे लिए दूर नहीं है, नजदीक ही है। इसे कहेंगे दृढ़ता। ठीक है ना? तो सफलता का 4 सूत्र क्या बताया? एक है सफलता, दृढ़ता क्या है? चाबी। तो दृढ़ता के बिना आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, और प्रैक्टिस अगर नहीं है तो प्रैक्टिकल जीवन में उसे उतार नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिकल जब आएंगे तभी हमारा जीवन में सफलता ही सफलता होते चला जाएगा। तो इसके लिए हमें हर पल क्या सोचना है कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सफल हूँ, सफल होना ही है, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सफल हूँ। जब बार बार ये बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, ओके। तभी 2 मिनट मेडिटेशन अर्थात मेडिटेट क्या करेंगे?
ओम शांति। मैं सफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में सफलता को पाता चला जा रहा हूँ। सफल होना मेरा सिद्धांत है। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वही होता है। मैं दृढ़ता संपन्न हूँ। मैं उस कार्य के लिए सक्षम हूँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे प्राप्त करना है। उसके लिए मैं योग्य हूँ, मैं लायक हूँ। हर रोज मन को शुभ संकल्प दे। मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्ति हूँ। मुझे आज तक जो भी प्राप्त हुआ है उससे मैं संपन्न हूँ, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। आगे भी जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे मैं खुशी खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है कि हमने जो लक्ष्य रखा है उसे हम एक दिन पूरा करेंगे ही करेंगे। सफलता मेरा सिद्धांत है। होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब ठीक है? ओके, सबको ठीक लगा? जी मैम। Yes, ma'am. है? कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं। सबको ठीक लगा? सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस मैम। सर हिलाने से कैसे पता चलेगा? हाँ या ना? यस या नो? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ओम शांति। Om Shanti. So, Thank you so much. on behalf of Cuttack branch and other branches of ICAI, we thank our Prerna Mall ma'am and ma'am along with her for guiding our students on the ये सफलता जो प्रोग्राम। हमने सूत्र बताया है ये सबके लाइफ में जरूरत है। स्टूडेंट हो, ऑफिस हो, जहाँ भी जो भी हो, सबको यही मन सूत्र जितना यूज करेंगे उनके लिए ये सफल होगा ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कर्म के आगे मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए, तभी हम जो करते हैं वो फिर साकार हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी मैम की बातों को ध्यान रखेंगे एंड अपने एग्जाम में उसको अपने जीवन में उसको इनकलकेट करेंगे ताकि आपका एग्जाम सब अच्छे से हुए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रखिए एंड आपको कभी भी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम आपके ब्रांचेस के जो भी इकासा चेयरमैन हैं वो आपके सपोर्ट में हैं। आप कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आप आके उनसे बात कर सकते हो।
एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट 2 दिन हम कलकत्ता में थे एंड हमारा प्रेसिडेंट के साथ ओरिएंटेशन था एंड लाइक उन्होंने बताया कि ब्रांचेस स्टूडेंट्स के लिए वो कितनी एक्टिविटीज करते हैं एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को जो भी पार्टिसिपेट्स किए हुए हैं आज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच में आए एंड ब्रांच की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। आप इन्वॉल्व होंगे तो ये आप ही का बेनिफिट होगा। आप आज जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या एग्जाम को टफ समझते हैं, बट वो एग्जाम टफ नहीं है। एग्जाम आप अगर सोचेंगे तो बहुत इजी है। क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ चाहिए और सबका जी। सहयोग चाहिए। तो आप ब्रांचेस सहयोग से लेते जुड़े रहें, आगे एंड बढ़ते रहेंगे। जी, आप ब्रांचेस से जुड़े एंड आपकी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है एंड कोई भी सॉल्यूशन आप चाहते, कोई भी सजेशन फीडबैक है, आइए ब्रांचेस में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए एंड देखिए फिर आपके एग्जाम्स में आपको कितनी हेल्प होगी। आपको कंपनीज एक्ट के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी प्रोग्राम कराना है तो इंस्टीट्यूट ने हमें स्ट्रिक्टली बोला है कि स्टूडेंट्स के लिए आप जितना प्रोग्राम करा सकते हो करवाओ and it will be benefit for all the students. And I would like to thank other branches chairman, ICASA chairman also for getting jointly with us and इस event को successful बनाने के लिए. And we have CA Vrinda with us and from Varus branch and ma'am, over to you. You can have a word with students. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we are already in lack of time, so मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, लेकिन इन रियलिटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ टिप्स है जो एज अ स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ही टू द पॉइंट में बताऊंगी। आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो सबसे पहला तो प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड ऑफ स्टडीज की हमारी एग्जाम टैगलाइन ही है प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। सो इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट? तो आपको प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी प्लानिंग हमें पूरे स्टडी की इस हिसाब से करनी है कि जैसे कि आपको एग्जाम के अगले 1.5 डे आपको जो मिलता है उसमें यू कैन कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। सो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, वो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। सबसे पहला तो व्हाटएवर यू रीड, अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू रिमेम्बर इट एंड रिवाइज इट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट 3 मंथ्स में तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं, दैट इज एंटायरली रॉन्ग। लास्ट 3 मंथ्स यू हैव टू डेडिकेट फॉर रिवीजन ओनली। रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, रिमेम्बर करिए। ये जो 3 स्टेप्स है वो आपके 3 मंथ्स बिफोर आई गेस कंप्लीट हो जाने चाहिए एंड लास्ट 3 मंथ्स में रिवीजन प्लान कीजिए एंड लास्ट 1.5 मंथ में मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। टेस्ट पेपर लिखने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो आपको कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि आप जब एग्जाम में, रियल एग्जाम में बैठते हो, यू आर अबाउट टू राइट और अचानक से आपको लगता है यार ये मैंने पढ़ा था लेकिन अभी लिखा नहीं जा रहा। वो चीज अगर आपने टेस्ट प्रैक्टिस की होती तो उस टाइम पे आपको रियलाइज हो जाता कि अच्छा ये मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप वो अगेन रीड कर लीजिए और वो आप जब दोबारा ये फीलिंग के साथ रीड करेंगे ना, आई बेट यू कि आप वो कभी नहीं भूलेंगे। और अगर बाय चांस एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स इन दैट आंसर प्रॉपरली, राइट? तो टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस इस वजह से जरूरी है। दूसरा कि हम लोग तकरीबन 80% पेपर ही लिख पाते हैं, 20 मार्क्स का हमारा छूट जाता है बिकॉज ऑफ स्पीड, है ना? हम इतना स्पीड नहीं पकड़ पाते, या तो फिर सोचने में, लिखने में इतना टाइम चला जाता है कि लास्ट का 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट सब बच्चों का छूट जाता है। तो इसके लिए भी अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट पेपर्स लिखोगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि आपको 3 आवर्स कैसे यूटिलाइज करने हैं। आपको जो आंसर अच्छे से आता है उसको पहले लिख दीजिए ताकि कम टाइम में आप मैक्सिमम मार्क्स अलोकेशन ले पाए। सेकेंड थिंग, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसने बोला कि मैम मैं सब पढ़ के जाती हूँ लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों लिख नहीं पाती हूँ।
मैंने पूछा अच्छा ठीक है बताओ तुम कैसे पढ़ती हो। उसने अपना बोर्ड ऑफ स्टडी मतलब अपना मॉड्यूल दिया और मैंने बोला अच्छा इसमें से तुम कैसे पढ़ते हो। उसने बताया नहीं ये आगे का तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, पीछे जो समरी है ना वो मैं पढ़ के जाती हूँ। मैंने उसको बहुत शाबाशी दी। वो पढ़ती है समरी, अभी समरी अपनी होती है टेबुलर फॉर्म में चार्ट के हिसाब से, चार्ट्स पढ़ती है और एग्जाम में पैराग्राफ्स लिखने जाती है। कैसे होगा ये बताइए। तो मेरा कहने का मतलब है आप जिस फॉर्म में पढ़ते हो या तो आपको जिस फॉर्म में एग्जाम में लिखना है उसी फॉर्म में पढ़िए, उसी फॉर्म में प्रैक्टिस कीजिए और उसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं पहले डिटेल में बुक्स पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम पर सिर्फ समरी देख ली, ये भी नहीं चलेगा। डिटेल में आप पढ़ते हो उसमें हाईलाइट कर लो, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको उतना ही पढ़ना है, पूरे पूरे लाइंस को नहीं पढ़ना है। लेकिन हाईलाइट किया हुआ इट्स ऑलमोस्ट अ फॉर्म ऑफ समरी हो जाएगा आपके लिए और उसी बुक में से पढ़िए ताकि एग्जाम के टाइम पर आपके माइंड में कंफ्यूजन ना चले कि अच्छा ये पढ़ा था लेकिन उसमें तो ये दिखा था, अभी क्या लिखूं, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, या तो फिर आप मेंटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, तो वो आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो ये चीज प्लीज मत कीजिए। मतलब कि आप जहां से पढ़ रहे हो और जैसा आपको लिखना है वैसा ही पढ़िए, वैसा ही रिवीजन कीजिए। ऑफ कोर्स आप डिटेल्ड पढ़ के आप अपनी समरी बना सकते हो, लेकिन वो समरी को आप यूज कीजिए बार बार रिवीजन करने में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम आप मेन बुक से ही पढ़े, ये मेरा मानना है। दूसरा है कि हमारा जो एग्जाम का आंसर शीट होता है, सजेस्टेड आंसर आप अगर देखोगे तो पेपर चेकर को स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम दिए जाते हैं। थियरी में भी ये सेम अप्लाई होता है। कुछ लोग समझते हैं अकाउंट्स या कॉस्टिंग या एसएफएम इसी पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होते कि जितना आपने सम किया है उतना आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन नहीं। थियरिटिकल पेपर, लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, इन सब में भी स्टेप वाइज मार्किंग होते हैं। जैसे कि ऑडिट में अगर आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन पूछा तो आपने 3 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन हाँ मैं ये बता दूं ऐसे पेपर में कीवर्ड्स लेमेंस लैंग्वेज नहीं चलेगी। अगर आप लॉ का पेपर लिख रहे हो लॉ की लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑडिट का पेपर लिख रहे हो ऑडिटिकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपने रियल में किया है, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जो एक कीवर्ड होना चाहिए वो होना ही चाहिए प्रॉपर मार्क्स पाने के लिए। और अब तो आपका कॉस्टिंग का पेपर भी ऑलमोस्ट थियोरिटिकल हो चुका है, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको आप अच्छे से याद करें और उसको ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें। और इन सब में एक बात का ध्यान रखें, देखिए जो भी पेपर आपका चेक करते हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं है और बहुत सारी सप्लीमेंट्रीज है, तो उनको आप दिक्कत मत दीजिए, उनको ट्रबल नहीं होना चाहिए। हाँ मैं आप ये मतलब मजाक के तौर पे भी ले सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है कि जो पेपर चेक करते हैं ना उनको दिक्कत मत दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब आंसर लिखते हो और आपको पता है कि ये मैंने करेक्ट लिखा है, ये टू द पॉइंट है, ये कीवर्ड है जिसके बेस पर मुझे मार्क्स मिल सकते हैं, तो उसको आप पेंसिल से सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हो। हाइलाइटर इज नॉट अलाउड इन अवर एग्जाम, बट पेंसिल यू कैन यूज। पेंसिल से उसमें टाइम नहीं जाएगा, ये सिस्टम मैंने खुद भी फॉलो किया है। और जब आप मतलब आपको कभी लगता है कि मेरे 60 मार्क्स आएंगे लेकिन 35 ही आए, क्यों? आपने आंसर शीट मंगाई और उसको अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्टेप वाइज मार्क्स कैसे होते हैं, ये मैंने खुद देखा हुआ है। और जहां जहां कीवर्ड था ना वहां पर करेक्ट करके ओके 1 मार्क, ओके 1 मार्क, तो ऐसे मार्किंग होता है। तो आप राइटिंग के टाइम पर ही पेंसिल से या तो पेन से भी, ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल ही लो, जिस पेन से आप लिख रहे हो कंटिन्यूएशन में उसी के नीचे अंडरलाइन करते जाइए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द वर्ड्स, अगर आपको डाउट है तो ऐसे गलती मत कीजिएगा, बट अगर आपको लगता है कि ये हाँ ये सही है, ये कंप्लीट है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरा, जैसे कि प्रेरणा मैम ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया, फिजिकल के साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्यूरिंग के एग्जाम आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, यू कैन डू वन थिंग, आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, आंखों को थोड़ा प्रेस कीजिए, थोड़ा माइंड को ऐसे रिलैक्स कीजिए, आप हैंड्स को मसल्स को रिलैक्सेशन दे सकते हो, फुट को रोटेट कीजिए, अपनी कलाई को मोड़िए थोड़ा। आप एक
बैठ के देखे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, ये सब पेन होने लगता है। और ये सब पेन होने के बाद आपका बॉडी साथ छोड़ देता है कि बस अब नहीं हो रहा, और बॉडी ने साथ छोड़ा मतलब माइंड ने साथ छोड़ा, है ना। तो इसीलिए बीच बीच में इस सब में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है। आप 2 घंटे पढ़े, उसके बाद 2 या 3 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें चाहे पानी पीकर आइए, खाना खाना है 10 मिनट 15 मिनट्स, लंच डिनर प्लान कीजिए, और इन बिटवीन आप 2-2 मिनट के ऐसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा कि एग्जाम के टाइम पर मैंने देखा है कि 1.5 डे जो हमें मिलता है उसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं क्या करती थी, कुछ अगर लॉ में, ऑडिट में, जैसे कि सिंपल सिंपल चैप्टर्स होते हैं ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अभी वो पढ़ने का आई डोंट थिंक सो कि कोई लास्ट मोमेंट पे वो चैप्टर पढ़ता भी है, बट उसके कुछ कीवर्ड्स है जो याद आ जाए, मतलब आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए यू कैन डू वन थिंग, ऑडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। अपने खुद के वॉइस में आप ऑडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ताकि एग्जाम से रिटर्न आते वक्त जब दूसरे दिन लॉ का पेपर है, आप हेडफोन्स लगा के वो सुन सकते हो। सोते समय आपको अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, यू नीड रिलैक्सेशन, आप 10 मिनट के लिए नैप लेना चाहते हो, 2 मिनट वो सुन लीजिए, नैप ले लीजिए, आपके माइंड में भी वो बैठता जाएगा। और इस चीज का आपको रिवीजन करने का अलग से टाइम एग्जाम के टाइम पर नहीं देना पड़ेगा, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरा मैं कहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेपर बहुत गंदा गया, उसके चलते हुए बाकी के पेपर है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, अच्छा ठीक है, पेपर खराब गया तो गया, लेकिन नेक्स्ट पेपर पे उसकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अपना रिवीजन, अपना माइंड उस हिसाब से सेट कर दीजिए। और अटेम्प्ट, मतलब ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। और हाँ, एक कंपैरिजन जो सारे बच्चे करते हैं, अच्छा लास्ट टाइम तो मेरे 173 आए थे, तो मतलब मुझे ये 33 मार्क्स की ही मेहनत करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको तो पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये 33 मार्क्स का गैप कैसे रह गया, इसको इवेल्युएट करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन प्रैक्टिस रिवीजन तो पूरी की पूरी अच्छे से ही करनी है, क्योंकि ऐसे हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार लास्ट टाइम तो 173 आए थे, इस बार 162 ही आए, है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा। और दूसरी एक मेन बात, स्पेशली जैसे कि डेरिवेटिव्स के चैप्टर में होता है कि हम मेथड अलग यूज करते हैं। बुक्स, हमारी जो मॉड्यूल है उसमें अलग मेथड दी हुई होती है, हमने जिसका वीडियो लेक्चर लिया हुआ है या तो आपके जो ट्यूटर है वो किसी अलग मेथड से पढ़ाते हैं, सारा की आ जाएगा आपका। लेकिन एग्जाम के टाइम पर लिखने के टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर मैंने का मेथड नहीं किया और मुझे मार्क्स नहीं मिला था, सो लेट मी रिमाइंड कि मॉड्यूल का मेथड क्या था। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। जिस मेथड से आपने किया है उसी को फॉलो कीजिए और उस पर ट्रस्ट कीजिए। एग्जाम के टाइम पर खुद की मेथड पे डाउट मत कीजिए। और जैसे कि प्रेरणा मैम ने बताया कि एग्जाम से 10 मिनट पहले अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, जो नेगेटिव है उनसे दूर रहिए, और 10 मिनट से पहले थोड़ा रिलैक्स होकर जाइए। टेंशन नहीं लेना है, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपने आपका 100% दिया है, अब आपको 3 घंटे में वो पूरा क्रिकेट अपना खेल खेलना है। तो इस हिसाब से चलिए। एंड आई होप मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ ज्यादा। अगर किसी को टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल कंक्लूड माय सेशन। Thank you so much, Gunda ma'am. It's a great session. You guided practical experience and real exam tests that will help our student to score more and more in the examination. And Lingaraj, sir, I would like to add some few points to Vrinda ma'am. Like स्टूडेंट्स को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पेपर लिख रहे हैं उसमें कोई भी मिसकंडक्ट मत कीजिए। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में बहुत सारे केसेस आए हैं मिसकंडक्ट के, एंड उनका पेपर्स विथहेल्ड किया गया है, उनका रिजल्ट्स विथहेल्ड कर दिया गया है। तो आप कोई भी एग्जाम में ध्यान रखिए कि कोई भी मिसकंडक्ट मत करें। नो चीटिंग पेपर्स, नो चीटिंग। एग्जामिनेशन में
आपको पेपर के ऊपर कोई भी शब्द ओम या हरि ओम, राम, जय श्री श्याम या कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है। ये अगर आप लिखते हैं तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया जाता है। तो इस छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड जो भी आपको 15 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम के पहले, उसको आप यूटिलाइज कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले आंसर करना है। जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उसको आप नंबर 1 लिख लीजिए वहां पर कि ये मेरे को पहले लिखना है। फिर नेक्स्ट में नंबर 2 कौन सा मेरे को करना है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। एंड आपको ड्यूरिंग दिस जो 6 महीने, लास्ट के 6 महीने मिलते हैं एग्जाम के पहले, दैट इज वेरी क्रूशियल। एंड उसमें आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ओनली जस्ट जो काम जरूरी है उसी के लिए यूज कीजिए। टेक्नोलॉजी से पूरा दूर रहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब से पूरा दूर रहिए। आप 6 महीने इसको अवॉइड कीजिए। रिजल्ट आने के बाद आपको जितना यूज करना है कीजिएगा। एंड टाइम पर आप जब पढ़ रहे हो तो कि आप अपना फोन स्विच ऑफ करके रखें, और जो आप सीख ले रहे हो स्विच ऑन करके जो भी मैसेज है व्हाट्सएप है देख लो, रिप्लाई कर लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, दैट इज ओके। बट ड्यूरिंग द 2 hours or 3 hours actually reading, give your 100%. एंड पॉजिटिव रहिए। एंड अपना स्लीप को 8 hours 6 hours जो भी आपको सुटेबल है उसको कंटिन्यू कीजिए। स्लीप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। राइट, क्योंकि क्या है, हमारे जीवन में सफलता और असफलता सिर्फ एक शब्द मात्र ही है। हमारे जीवन में सफलता और असफलता सिर्फ एक शब्द मात्र ही है। जिंदगी का असली मजा तो काम और पढ़ाई के नशे में है। तो ये पढ़ाई नशा आपको होना चाहिए। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो इसी के साथ हम अपना सेशन आज का एंड करते हैं। एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारी एक्टिविटीज के लिए। एंड special thanks to other ICASA chairman of other branches, ICASA team members, Shri Vinda, I can see, and other members of different branches, and to our speaker Prerna ma'am. And yes, you have any doubts or any concern or any suggestions, please connect with your branch ICASA chairman or ICASA team, and definitely I think we will bring up more events for you all. So keep tuned, stay tuned. Yeah, thank you so much, thank you sir. everyone. Thank you, sir. Thank you everyone. And I would like to formally give a vote of thanks to Prerna ma'am. And Prerna ma'am, thank you so much for accepting our request to join and guide our student. Your various points would definitely help us in scoring and reaching to the level of success in our life. I would like to thank BK Surekh ma'am for joining all of sudden and guiding the real tips of the life that helps us to success and motivate the inner soul that help to keep growing towards the future. And I would like to thank here Brinda Bakharia ma'am for sharing the practical experience and the real tips that help us to score really good marks in the examination. And ma'am will definitely follow this step in our exam. And you know, there is only a week left for our exam, and these tips are really helpful for us. Thank you so much ma'am for joining. And I would like to thank the ICASA team of the Navi Mumbai, Pune, Vapi, Kalyani, Dambavali, Paruchi and Nanded and Thane for joining with ICASA Cuttack team for conducting this session of Safalta, the motivational section. Thank you so much. I formally conclude the session here. Thank you all. Thank you. Thank you all.